Hello, lovely people. Welcome again to my YouTube channel, Soul Sparks with Pallavi and Mrs. Pallavi. And today I'm back again with the episode number 4 of the series Upliftment and Confidence. And today we are going to talk about the wildest thing you'll ever experience in your whole life. So, if I talk about the wildest thing, what's the wildest animal on the whole, like on this whole planet? I believe we are the wildest animal. We humans. We are the wildest animal on this earth. And you know why? Because the number of people that is walking around us, they are walking in a version of themselves that isn't even exist, that doesn't even exist. And you know why? Because they are wearing someone's else skin. So the question rises here, how? Okay, so in our life, we are constantly looking for approval. We are constantly looking for likes, a text back, living for the family, the culture, the tradition, the society, the fear of being alone, and we are living for everyone except ourselves. We don't live for ourselves; we live for everyone else around us. And I did it too, actually. As I said earlier, also in the previous video, that it's nothing like everyone has to go through everything. If we are born on this earth, then we need to feel each and every emotion. So yeah, I did it too in my past. I shrank my voice and I smiled when I wanted to scream, and I said I was fine when I was burning inside. I said I was okay so that I don't make people around me uncomfortable. I shut my voice because I was told I am immature. Because I was told that I was immature. I was dramatic. I was, you know, a person who is, who feels everything, who is always too much. And just to make other comfortable, I shrank my voice, I shrank my emotions, and I didn't choose myself because I never wanted to be alone. I wanted to belong somewhere, you can say. And because the reason behind not choosing my own self was, you can say, I believe I was not someone worth choosing. And I believe that okay, maybe I don't deserve these things. But you know what? जब बुरा टाइम आया ना, like when there was a worse situation, I was going through a very rough phase, you can say. So at that time, मैंने जिस जिसको बटर अप किया था, मैंने जिस जिसके लिए सब चीज़ सेक्रीफाइस किया, मैंने जिस जिसके लिए for my friends, I didn't change my department. Like I was like, I shouldn't go and upgrade my department because I should be with my friends and all. And at that time, no one was around. I literally put my career at stake just to have friends around me. And you can imagine, like during my worst phase, no one, not a single person was there. And that time I realized that no one's going to save me. No one's going to come and save me. Not the lover, not the job, not the Instagram coach, not the person who's liking my story and commenting on my post and all. No one's coming to save me. And at that moment, I realized that I need to choose myself over and over. And in that terrifying situation, I realized that, I have to choose myself. And you need to choose yourself in the most terrifying situation because no one's gonna save you. And I realized at that moment, and you know, at that moment, I realized that I don't need a hero in my life to save me, because at that time, I became my own hero.
I handled everything, my depression, my anxiety, uh, a lot actually. So let's just not talk about that in depth. I'm healed with God's grace. I'm healed from all those things, and I know the true colors of everyone now. So, based on my experience, I'm here to share with you that choose yourself, not the society, not the people, not your friends. Choose yourself. And I want to hear, like, I want you to hear me when I say this. You are not too much, you are not dramatic, you are not the problem, you are not dreaming too much, you are not asking too much. The vision in your chest, वो जो noises आपको रात में आता है, वो जो burn होता है ना आपके chest में, वो जो whispers आपके ears में होते हैं कि you could have done better, ये वो सारी चीजें true है, because you deserve better. And वो चीजें आपको मिल सकती है. It's just you are keeping yourself behind someone just to make them comfortable, but just then उसको time मिलेगा ना, that person will leave you. That person will leave you because आप मैंने literally मैंने बहुत चीजें at stake रखी हैं लोगों के लिए, बहुत चीजें. And at the end, in the most terrifying situation of my life, I became the one who's gonna come and save me. I became my hero. No one came for me. So, जो भी चीज़ें आपको लग रहा है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि okay, you are shrinking yourself, you deserve better, trust me, you deserve better, and that's the reality. And the only thing that is standing between you and that wonderful life ahead is that you're thinking, because you think that you're not worthy of this thing, you're not worthy of this life. No, you are. It's just you are keeping others perspective important in comparison to your perspective. So based on my experience, I'm telling you all to just back off from all those persons, just leave that toxic friendship relationship, just cut off from those people, cut off from that job. Do what you want to do for yourself, live for yourself. And मेरे को एक चीज बताओ ना, लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आज आप अपने हिसाब से रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, एंड आपने ना मतलब ये नहीं सोचा कि चलो आज अगर मैं सर्टेन टाइप ऑफ काम अच्छे कर लूंगी लाइफ में, तब मैं जाकर के इस टॉक्सिक चीजों से बाहर निकलूंगी, बिकॉज अभी मेरा कोई वर्थ नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद कुछ होता है, मैंने भी सोचा था कि चलो कुछ बिल्ड कर लेंगे, फिर जब बड़े पोजीशन में चले जाएंगे तो आई फाइंड गुड पीपल देयर, एंड अभी इन लोगों को अगर छोड़ देंगे तो अकेले हो जाएंगे, ये वो चीज़ें मेरे भी दिमाग में आया था उस समय पे, ठीक है. बट अभी मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर आप ये क्यों सोचते हो कि जब आप कुछ अच्छा बन जाओगे फिर आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलोगे, मतलब अभी क्यों नहीं निकल सकते हम उस चीज़ों से बाहर. एंड क्या होगा अगर आप वो एनवायरनमेंट छोड़ करके बाहर निकल रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मेरे को बताओ. कुछ लोग चले जाएंगे आपके लाइफ से, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, आपकी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी, होगा. आप कुछ लोगों को छोड़ दोगे, आप अलोन फील करोगे, आप रोओगे बैठ करके घर में, कुछ दिन तक सैड रहोगे, बट फिर आपको रियलाइज होगा कि दुनिया तो चलती रहती है, तो आप फिर उठोगे और अपना काम आप खुद से करोगे, एंड आप अपना हर एक काम फिर खुद से करोगे. एंड फिर जब आप अपने आप को आईने में देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि यस, यू आर द पर्सन जिसने कभी खुद के ऊपर गिव अप नहीं किया, क्विट नहीं किया आपने. लाइक आप वो पर्सन हो जिसने अपना खुद का हाथ पकड़ा, एंड आप उस क्राउड से, आप उस एनवायरनमेंट से जहाँ वैल्यूड नहीं होते थे, आप आपने खुद को समेट करके खुद वहाँ से आप बाहर आए हो. एंड आपने नहीं सुना पूरे वर्ल्ड का, जब आपको पूरी दुनिया कह रही थी कि ओ कीप योर वॉइस डाउन, स्टे क्वाइट, यू आर टू मच, यू आर टू लेस. आपने ये सारी बकवास नहीं सुनी, एंड आप बाहर निकले, एंड आपने खुद को चुना. एंड उसके बाद आपकी आवाज लाउडर हुई, आप सीखे बोलना, इवन व्हेन योर वॉइस वाज शेकिंग, इवन व्हेन यू लाइक इवन व्हेन यू फील टिमिड, जब आपको लगता था कि नहीं नहीं होगा, फिर भी आपने बोलना सीखा, आपने कोशिश करना सीखा, आप खुद पे डिपेंडेंट रहने लगे. ये एक्चुअली में उसका आउटपुट है, ठीक है. एंड
आई नो कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है? ये थोड़ा स्टार्टिंग फेज़ में ना बहुत डिफ़िकल्ट होगा एंड इसके लिए आपको बहुत सारी कॉन्फिडेंस चाहिए होगी कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सको। बट देखो कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस डज़न्ट कम फ्रॉम बीइंग जस्ट फियरलेस, ठीक है? इट कम्स फ्रॉम फेसिंग द फियर एंड डूइंग इट एनीवे। ओके, डर लग रहा है, ठीक है, इस चीज़ों का बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है, बट ठीक है, कर लेंगे लाइफ़ में, देख लेंगे जो होगा। मतलब आपको अपने फियर, अपने डर को फेस करना होगा। आपको पता है कि चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं अभी, बट आप फिर भी कर रहे हो, ठीक है? एंड जब आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर के देखोगे कि ओके, यू आर विद ऑल द स्कार्स, टीयर्स, द स्ट्रेच मार्क्स एंड स्टिल you made it, you are still worthy, that version of you जो कि अनफिल्टर्ड, अनअपोलोजेटिक एंड वो जो वर्जन होगा ना, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन होगा। वो वर्जन ना कोई इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो वर्जन कोई इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आप जिस रूम में जाओगे ना, यू विल ओन दैट रूम बिकॉज you picked yourself even though people are not picking you, you picked yourself and वो कॉन्फिडेंस ना फिर आप अपने साथ में कैरी करोगे। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज योर साइन टू जस्ट स्टॉप डिमिंग योर लाइट जस्ट टू मेक other people feel good. Just stop shrinking yourself so that others feel tall, and just stop apologizing for existing in your full power. कभी भी दूसरे अच्छा फील करे इसलिए प्लीज खुद को श्रिंक मत करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे लीव यू। वो बहुत अगलीस्ट एक्सक्यूजेस दे करके जाएंगे एंड आप रह जाओगे अकेले। तो आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डोंट चूज पीपल, बी विद देम जो आपके साथ है ना। देखो, अगर आप लोगों को, जब आप लोगों को छोड़ दोगे ना, तो तभी आपको रियलाइज होगा कि आखिर आपको कौन रखना चाहता है। जो आपके लोग हैं ना, वो आपके साथ में रहेंगे, ठीक है? आप उनको कितना भी पुश करने का कोशिश करो, वो देखेंगे कि ओके, यू नीड देम, तो फिर वो आपके लाइफ में होंगे उस समय। बट जिनको आज ना कल आपके लाइफ से, जो जस्ट आपको यूज कर रहे हैं, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो अगर आपने थोड़ा सा भी वो दिखाया कि नो, आई डोंट डिजर्व दिस, तो फिर वो साइड हो जाएंगे। बिकॉज उनको पता चलेगा कि ओके, अब मेरा टेक्टिक्स जो भी है ना, इसके ऊपर चलने वाला नहीं है, तो इसलिए वो हट जाएंगे आपके लाइफ से एंड दैट इज अ प्राइज फॉर यू। आपको लगेगा भी बुरा कि क्यों चले गए, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने ना बेसिक सा साइंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लैंड ब्रिज सी ब्रिज करके। सो मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, ठीक है, बट उसमें कुछ ऐसा ही होता है ना कि जब जब एक हॉट एयर राइजेस होता है, अगर सी ब्रिज की शायद मैं बात करूँ, तो जब हॉट एयर राइज होता है तो जो सी ब्रिज से के पास से जो एयर होता है, वो आते हैं उसको, उस स्पेस को फिल करने के लिए। आई बिलीव दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो इट्स जस्ट द वे हाउ नेचर वर्क्स। जब तक वो हॉट एयर जो है ना आपकी लाइफ में, अनवांटेड जो पीपल हैं, जब तक आप उनको फिल्टर नहीं करोगे, जो एक्चुअली में जो कोल्ड एयर, जो शीतल जैसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपके साथ रहेंगे, जो जिनके साथ आप पीस फील करोगे, वो कैसे आएंगे? जगह तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड किया हुआ है ना लोगों ने, जो आपके लिए है नहीं। तो आपको ऐसे ही सोचना होगा। एंड अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब आपको बस कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको लग रहा है ना कि यार कोई मेरे लिए क्लैप नहीं करने वाला होगा, कोई कुछ, मतलब मुझे भी लगता था कि ओके, चलो ठीक है, लाइफ में कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब मैं ऐसे सोचती थी, ठीक है, कि अरे यार अभी से 10 साल बाद सपोज अगर मैंने लोगों को छोड़ दिया, ठीक है, मैंने लोगों को छोड़ दिया अभी, तो अगर सपोज मैं 10 साल बाद कुछ अच्छा भी कर रही हूँ लाइफ में, तो मेरे पास लोग नहीं होंगे बैठ करके कॉफी पीने के लिए भी, तो मैं सेलिब्रेट किसके साथ में करूंगी? मैं ऐसा सोचती थी, ठीक है, इसलिए मैं सबको कैरी करके सोचती थी कि चलते हैं। बट एट द एंड क्या हुआ? दे लेफ्ट मी इन माई वर्स्ट सिचुएशन। एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को रियलाइज हुआ कि चलो बढ़िया ही हुआ चले गया। बिकॉज इन लोगों के साथ में आप क्या अपना सक्सेस का स्टोरी शेयर करोगे? आप मतलब ऐसे लोगों के साथ में आप वो पहली बात तो आपके लिए खुश नहीं होंगे, कॉफी पीना तो दूर की बात है, वो आपके लिए खुश भी नहीं होंगे, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने भी नहीं आने वाले लाइफ में, ठीक है? तो इसलिए आज से जस्ट बी अनअपोलोजेटिक। मतलब कोई जरूरत नहीं है बुरा फील करने का किसी के लिए, अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोचना इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड थिंग। मतलब हाँ, अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो और अपने बारे में सोच रहे हो, तो फिर क्या बुराई है इसमें? क्यों नहीं सोचे हम अपने बारे में? एंड
आपको जब भी लगे ना कि कोई नहीं होगा आपके साथ में, ठीक है, आप खुद के लिए क्लैप करो ना, आप बस अपना वॉइस को स्ट्रेंथ मत करो, ठीक है, एंड लव योरसेल्फ, बिकॉज नो वन कमिंग टू लव यू, एंड ये वो चीजें वो टाइम के साथ में रहता है, फिर लोग निकल लेते हैं, अपना अपना फायदा सब देखते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये चीजें सच में, मतलब अगर आपने कभी ये सब चीजें फील किया एंड आपको सच में लग रहा ना कि ओके यू हैव बीन थ्रू दीज थिंग्स, तो आपको आई वुड रिकमेंड अ बुक लाइक देयर इज अ बुक यू आर अ बैडएस बाय जेन सिनकेरो। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने वहां से बोला एंड समहाउ ये सारी चीजें मुझे अपनी लाइफ में भी लगी, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया था। सो आई एम सेइंग कि just go and just give it a read to this book, and please choose yourself over and over again, because लोग नहीं चुनने वाले हैं, उनको जब मौका मिलेगा ना, मतलब वर्स्ट सिचुएशन में आपको लोग छोड़ करके जाए, आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओ उस समय तक, उसके पहले आप निकल लो वहां से, ठीक है। और जो आपके लोग हैं ना वो कहीं नहीं जाएंगे, आप उनको कितना भी पुश कर लो वो नहीं जाएंगे कहीं, बट जो आपके लोग नहीं हैं आप उनको कितना भी ऐसे होल्ड करके रखो, दे लीव यू एंड दे लीव यू एट योर वर्स्ट। एंड उस समय ना खुद को संभालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी ऑल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट्स व्हाई पीपल, I'm sorry to say, but that's why people commit, uh, that's why people do such a take such a hard step in their life, because they have already become dependent on someone else, and that person left them in the midway. So don't be that person जिसको बुरा लगे जब लोग चले जाए, ठीक है। बी दैट पर्सन जो प्रिपेयर्ड है कि चलो ठीक है, जाना है जाओ, जो करना है करो, मैं अपना काम देख रही हूँ, ठीक है। सो विद दिस लेट्स जस्ट close today's video, let's just wrap the video, and yeah, thank you so much for watching my video till here, and I'll be meeting with you in the next episode, that is the episode number 5. Till then, bye bye, and thank you so much for watching my video till here.